to learn about the osmoconformers and osmoregulators. That प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया, ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी. ठीक है. So this particular part, that is 176 and 177 page number, I will be dealing that particular topic in the next class. Today we are going to learn about the human excretory system. ठीक है. So please note down, we are going to learn today human excretory system. So take out page number 178 of your textbook. Miss, textbook is not there. Whatever you are having PDF, from wherever you are learning, जो भी आपके पास material है. Why you have not bought the textbook yet? Store is not open. खुले ही हैं. हाँ? Store is not open. How come stores is or not open? सब तो दुकान खुले ही हैं. कल्याण ईस्ट में ही रहते हो ना बेटा आप? हाँ मिस. तो फिर सारे दुकान खुले हैं. Go and get your textbook. ठीक है? That is very important. तो चलो, जिसके पास textbook नहीं है, you buy your textbook, and those who are having textbook, take out page number 178. Again, those who have joined late, उनको मैं बता दे रही हूँ कि 77 and 76 page number I will be taking in the next class. Today we will be learning about the human excretory system in detail. So our excretory system consists of two kidneys, that is pair of kidneys. From kidney you can see that a tube is coming out. See the cursor, called as pair of ureters, a single bladder, urinary bladder, and the last part through which we urinate is called as a urethra. Okay? So pair of kidneys, pair of ureter, single urinary bladder, and single urethra. Is that very clear? Now, many of the students, they have a confusion. Okay? For the ureter and uterus. Uterus is a part of female reproductive system. So please don't get confused. It is ureter. Okay? Now let us first learn about the kidney in detail. Please note down the points also. So what is the color of the kidney? It is reddish brown in color. What is the color of the kidney? It is reddish brown in color. What is the shape of the kidney? You can see that the shape is bean shape. Bean मतलब क्या होता है? राजमा देखा ना बेटा आप लोगों ने? राजमा. Yes. जैसे राजमा, हाँ, तो राजमा के जैसा ही अपना किडनी दिखता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि it is bean shaped. ठीक है? Next, it is enclosed by 3 layer of capsules. Capsule मतलब क्या होता है बायो में? कवरिंग. तो फाइब्रस का कैप्सूल्स है उसके ऊपर 3 layers of covering present है. ठीक है? Let us talk about कि present कहाँ पर है. तो where it is present? It is present on either side of our vertebral column. Yes, बीच में अपना vertebral column है ना, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं. तो अपने रीढ़ की हड्डी के दोनों बाजू में present है, on either side of our vertebral column. And the level is about at the 3rd lumbar vertebrae. आप अभी लोकोमोशन लेसन पढ़ोगे और लोकोमोशन लेसन में आप पढ़ोगे कि हमारा जो वर्टिब्रे है वो अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है. जैसे कि हमारे नेक रीजन में सर्वाइकल, नेक रीजन में पीछे के साइड में सर्वाइकल है, चेस्ट रीजन में पीछे के तरफ थोरैसिक वर्टिब्रे है, एब्डोमेन रीजन में पीछे की तरफ लंबर वर्टिब्रे है. तो जहां पे हमारा 3rd लंबर वर्टिब्रे होता है वहीं पे ये हमारा किडनी सिचुएटेड है. ठीक है? तो हमारे दोनों वर्टिब्रल कॉलम के एक इस साइड एक दूसरे साइड, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड. नेक्स्ट पॉइंट इज द लेंथ ऑफ द किडनी. तो लेंथ क्या है इसका? इट इज 10 सेंटीमीटर. हाँ, लेंथ है उसका. विड्थ इज 5 to 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर.
वेट कितना होता है किडनी का? इट इज अबाउट 120 grams to 170 ग्राम. ऑब्वियसली 120 grams इन फीमेल एंड 170 grams इन मेल. थोड़ा मेल में वेट ज्यादा होता है कोई भी ऑर्गन का, फिर आप हार्ट लो या फिर किडनी लो, इसका जो वेट होता है मेल में थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल. द रीजन बिहाइंड इज मेल का जो मेटाबॉलिक रेट होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट मेल का डिफरेंट होता है और फीमेल का डिफरेंट होता है, इसलिए वेट में थोड़ा सा प्लस 50 ग्राम्स ज्यादा होता है मेल के अंदर कोई भी ऑर्गन्स का जो वेट होता है. ठीक है, सो इतना क्लियर है सबको. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज बीन नॉट देयर इन द स्लाइड इज अबाउट दी उसके ऊपर का जो कवरिंग है, किडनी के ऊपर सिर्फ वन साइड में कवरिंग होता है and therefore it is called as a retroperitoneal. Please note down, kidney has covering only on one of the side and therefore called as a retroperitoneal. Miss spelling. Next, retro का स्पेलिंग क्या है? RETRO, retro. पेरिटोनियल का मतलब बायो में होता है कवरिंग, कवरिंग का मतलब होता है पेरिटोनियल. ठीक है, तो बायो में जब भी आप पेरिटोनियल वर्ड कहीं पे भी सुनोगे तो उसका मतलब आप क्या समझोगे? कवरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन. ठीक है, सो because the kidney has covering only on one side, so it is called as a retroperitoneal. RETROPERITONEAL, retroperitoneal. Next important point, you can see that on the outer surface there is a notch like structure. ये notch के जैसा structure आपको नजर आ रहा है. ये जो notch के जैसा structure है इसको ही क्या बोला जाता है? हाइलम. क्या बोला जाता है? हाइलम. इसको हाइलस भी बोला जा सकता है, हाइलस, HILUS, हाइलस और हाइलम. अच्छा, अब ये हाइलस या हाइलम का खास बात क्या है कि यहीं से यूरेटर बाहर आता है. ये हाइलम में से, ये ओपनिंग में से ही यूरेटर हमारा बाहर आता है. और ये हाइलम ही ऐसा ओपनिंग है जहां से अपने ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है किडनी में. दैट इज अ रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन. किडनी को रीनल भी बोला जाता है. यस, किडनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीनल. तो किडनी का आर्टरी विल बी कॉल्ड एज रीनल आर्टरी एंड किडनी का वेन विल बी कॉल्ड एज अ रीनल वेन. वेरी क्लियर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है. लेट मी शो यू ओवर हियर. सी, हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है. दोनों साइड में यू कैन सी द ग्लैंड इज बीन प्रेजेंट. दिस ग्लैंड इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, एंड द नेम ऑफ द ग्लैंड इज रीनल के ऊपर है. अभी मैंने आपको बताया किडनी को क्या बोलते हैं? रीनल बोलते हैं. तो रीनल के ऊपर है तो मैं इसको क्या नाम बोलूंगी? एडरीनल ग्लैंड. एडिशन टू द रीनल कॉल्ड एज एडरीनल ग्लैंड. It is also called as, this gland is also called as suprarenal gland, also called as suprarenal gland. supra मतलब ऊपर, रीनल के ऊपर. सुप्रा बेटा, सुप्रा, SUPRA. लिखा? SUPRA, सुप्रारेनल ग्लैंड. ये ग्लैंड क्या हार्मोन बनाता है? दैट वी विल बी लर्निंग इन डिफरेंट लेसन. ठीक है, और ये लेसन में भी आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे. अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अभी हम उसका फंक्शन बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं. कि अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं कि वो कैसा दिखता है. तो मैंने आपको किडनी के बारे में क्या क्या बताया. सबसे पहला पॉइंट, जस्ट हैव अ देखो आपने वो सारे पॉइंट्स कवर किए हैं या नहीं. तो वेरी फर्स्ट पॉइंट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कलर. तो कलर ऑफ द किडनी इज reddish brown bean-shaped structure enclosed in tough 3-layer fibrous capsule. Very good, shabash beta. So let us bifurcate it. Color, so color is reddish brown in color. Shape, shape is bean shaped. ठीक है. Covering, so covering के सामने डैश करके क्या लिखोगे? The kidney is covered with 3 layer of fibrous capsule. कैप्सूल अगर आपको वर्ड याद नहीं आता है तो आप कवरिंग भी लिख सकते हो. देन लोकेशन,
What you will be writing about the location? It is present on either side of our vertebral column, near to the which lumbar? Near to the third lumbar vertebrae. लास्ट thoracic एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है. यस, हमारा 12th thoracic एंड थर्ड लंबर के बीच में हमारा किडनी प्रेजेंट है. नेक्स्ट हेडिंग आप लिखोगे साइज. सो साइज में आप क्या लिखोगे? 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग आप लिखोगे वेट. वेट के सामने क्या लिखोगे? इट इज अबाउट 120 to 170 grams. If you want to bifurcate, you can write down मेल में 170 and फीमेल में about 120 to 30 grams. Next important point what I have told you is about the hilum or the hilus. क्या बताया मैंने? On the concave side, yes, we can see a notch-like structure, and this notch-like structure is called as a hilum or the hilus. From this hilum or the hilus, the ureter comes out, and it is an opening through which the blood supply is been given to the kidney. The blood supply to the kidney is in the form of renal artery and renal vein. ठीक है. Next point I've told you is about. Next point I've told you about that above the kidney there is one gland present, and this gland is a endocrine gland. What do you mean by endocrine gland? Endocrine gland का मतलब होता है there are two types of glands basically. Exocrine gland and endocrine gland. Exocrine gland का मतलब है जो अपना secretion किधर डालते हैं? डक्ट में डालते हैं या पाउच में डालते हैं. जैसे कि स्वेट ग्लैंड हो गया, टीयर ग्लैंड्स हो गया, ऑयल ग्लैंड्स हो गए, तो उनके पास सबके पास पाउच होता है अपना सिक्रेशन सिक्रेट करने के लिए. तो ऐसे ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास कोई पाउच या डक्ट नहीं है, वो लोग अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर डालते हैं. ठीक है. तो हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, वो भी एक टाइप का क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है. वो जो भी हार्मोन सिक्रीट करता है वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करता है. इनफैक्ट आप आगे पढ़ोगे कि हमारा जो किडनी है वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, वो भी एक हार्मोन बनाता है. यस, वी विल बी लर्निंग आफ्टरवर्ड्स कि वो कौन सा हार्मोन बनाता है और उसका क्या काम है. इतना सबको समझ में आ गया है? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द किडनी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ठीक है. अच्छा, किडनी के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं. किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, एंड दीज नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. इसका मतलब क्या है? हम बोलते हैं कि किडनी क्या करता है? यूरिन बनाता है, पर एक्चुअली किडनी के अंदर यूरिन बनाता कौन है? तो किडनी के अंदर यूरिन बनाता है नेफ्रॉन्स. तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी आगे पढ़ना है. ठीक है. ये तो अंदर की बात है, किडनी के अंदर की बात. ठीक है. पर अभी सिर्फ मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया ये टर्म, दैट इज नेफ्रॉन. वी विल बी लर्निंग अबाउट द टीएस ऑफ किडनी ऑल्सो, मतलब हम एलएस ऑफ किडनी भी पढ़ेंगे आगे. इज दैट वेरी क्लियर अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर? Now let us move on to the next part, that is a pair of ureter. ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है. अच्छा, one more important point I have missed out to tell you is, जब आप ये दोनों किडनी को देखोगे तो आप देख सकते हो आपके राइट हैंड साइड पे जो किडनी है, जहां पे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, दिस यू विल बी लेबलिंग एज दी, आपके राइट हैंड साइड पे इट विल बी द लेफ्ट किडनी, और आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला जो किडनी है, ये वाला जो किडनी है, उसको आप क्या मार्क करोगे? राइट किडनी. इज दैट वेरी क्लियर? फिर आप मुझे बोलोगे कि ऐसा क्यों करना है मैम? क्योंकि जब आपका राइट हैंड साइड विल बी सामने वाले का लेफ्ट हैंड साइड, है कि नहीं? तो जब आप अब कोई मतलब जो आपके सामने खड़ा है, अगर आप उसका किडनी को सोच रहे, इमेजिन करके ड्रॉ कर रहे हो, तो आपका राइट हैंड साइड विल बी सामने वाले का लेफ्ट हैंड साइड.
तो हमेशा ये चीज याद रखो बेटा कि जब भी आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपका राइट हैंड साइड में आपको मार्किंग क्या करना है, लेफ्ट किडनी, और आपके राइट हैंड साइड वाले में आपको मार्किंग क्या करना है, राइट किडनी। समझ में आ गया? सो दिस विल बी लेफ्ट किडनी एंड दिस विल बी राइट किडनी। वेरी क्लियर? यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन किया आपने। सो अभी लेबलिंग भी करते जाओ। 178 पेज नंबर पे आपको लेबलिंग का जगह दिया गया है, तो मार्किंग करके रखा गया है, तो प्लीज मेरे साथ ही लेबलिंग भी करते जाओ। आपके राइट हैंड साइड में राइट डाउन एज लेफ्ट किडनी, on your right hand side write down left kidney, and on your left hand side write down right kidney. All of you mention about the adrenal gland, देखो उसको भी लेबलिंग दिया है, mention about the adrenal gland. लिखा? हाइलम या हाइलस का भी लेबलिंग है, तो उसको भी मार्किंग करो। जो ब्लू कलर का ब्लड वेसल दिख रहा है उसका नाम क्या है, इंफीरियर वेना कावा। ये जो ब्लू कलर का ब्लड वेसल है, देखो आपको टेक्स्ट बुक में भी उसको लेबलिंग के लिए जगह दिया है। सो मार्क इट एज इंफीरियर वेना कावा। रेड वाले को मार्क इट एज डॉर्सल एओर्टा। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, ये सारा लेबलिंग टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करो 178 पेज नंबर पे। complete all the labelings. किया सबने लेबलिंग? यस मैम। यस मैम। ओके चलो, अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द यूरेटर नाउ। ठीक है, तो व्हाट इज यूरेटर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट फ्रॉम द हाइलम, हाँ व्हाट इज कमिंग आउट, ये पेल्विस मेडुला कॉर्टेक्स, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी हाँ आपको, जब हम लोग ये इसका एलएस पढ़ेंगे तभी। ओके, अब मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, अबाउट द यूरेटर नाउ। ठीक है, now from the hilus of the kidney, what is coming out, a thin tube is coming out from both the kidneys, and this thin tube is called as the ureter. ठीक है, so let us learn about the ureter in detail. Just a second beta. Okay, now what you have to say about the ureter is that the ureter is, इसका काम क्या है, जो भी किडनी ने यूरिन बनाया है उसका काम क्या है, ये ब्लैडर तक पहुंचाने का काम है। ठीक है, हाँ, whatever kidney has made the urine, the function of ureter is to transport the urine from kidney till the urinary bladder.
How much long it is? It is 25 to 30 centimeter long tube. 25 to 30 centimeter long tube. You can see that the ureter is opening inside this urinary bladder. तो दोनों भी किडनी का जो भी यूरिन तैयार हुआ है इसका सिर्फ काम है to transport till the urinary bladder. Very clear? ठीक है? Now one more important point which I missed out is about the kidney is you can see the difference in the kidney. एक किडनी हमें थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा है और दूसरा किडनी हमें थोड़ा सा नीचे नजर आ रहा है. So this is the way it is present in our body also. Our right kidney, now this will be your right side. Yes, the right kidney is slightly lower in position as compared to the left kidney. ऐसा क्यों है? राइट साइड का किडनी थोड़ा सा नीचे क्यों है? Because of the presence of liver on right hand side. We have already learned that liver is the largest gland, है ना? About 1.5 kg का liver है. तो बिकॉज लिवर इज सो बिग, यहाँ पे इसके ऊपर जस्ट लिवर प्रेजेंट होता है. बिकॉज द लिवर इज सो बिग, अपना जो राइट साइड का किडनी है इट इज स्लाइटली लोअर इन पोजीशन एज कंपेयर टू द लेफ्ट हैंड साइड. सो व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर डायग्राम ऑल्सो. आपको राइट साइड वाला किडनी थोड़ा सा नीचे बनाना है और लेफ्ट साइड का किडनी थोड़ा सा ऊपर बनाना है. यू कैन सी द मेजरमेंट ओवर हियर. देयर इज ओनली अ स्लाइट डिफरेंस. हाँ, ऐसा एकदम एक नीचे और एक ऊपर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं बनाना है. हाँ, अदरवाइज डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा. इज दैट वेरी क्लियर? सो राइट साइड ऑफ द किडनी स्लाइटली लोअर इन कंडीशन एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी. ठीक है. नाउ next is about the ureter. As I've told you, it is 25 to 30 centimeter long tube. The function of ureter is to carry the urine which is made by the kidney, yes, till the urinary bladder. नोट डाउन किया सबने? मिस रिपीट. हाँ, यूरेटर का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर? टू कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. टू कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है. यस. Yes. Okay. कितना बड़ा ट्यूब होता है ये यूरेटर? 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब. 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब. चलो, next we are going to learn about the urinary bladder. What is the shape of the urinary bladder? तो I can say that it is a pear shaped. Pear पता है ना? pear फल पता है सबको? Yes. Yes. तो pear का shape कैसा होता है? Roughly triangular in shape. तो ये urinary bladder भी हमारा कैसा होता है? Roughly triangular in shape होता है. Yes. So I can say that it is a pear shape. Next sentence देखो मैं क्या बोल रही हूँ. It is a bag-like structure or a sack-like structure. अगर मैं किसी चीज को bag-like structure बोलूंगी मतलब it is storing something, है ना? तो ये क्या करता है urinary bladder? It is storing urine. But permanent store करता है क्या urine को? No. No. So as a No. science student, you have to be very specific in your answer. It is temporary storing the urine. So the next question arises कि how much urine it can store at a stretch. So it can store about 500 ml to 1 liters of urine at one time. ठीक है? आधा लीटर से लेके 1 लीटर तक यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो सकता है. Got it? अच्छा. When I can say that कि it can store about 1 liters of approximately urine, that means ये जो muscles है इसका ये कैसा होना चाहिए? Stretchable muscles है. So let us write down about that. So please note down
The urinary bladder is made up of a special type of muscle called as detrusor muscle. D-E-T-R-U-S-O-R. D-E-T-R-U-S-O-R. detrusor muscle. लिखा सबने? मैं सेंटेंस वापस बोलूं? Urinary bladder is lined by या फिर formed by special type of muscle called as detrusor muscle. ठीक है? Yes. Okay. Similarly, continue the sentence. Similarly, इसके पास एक और स्पेशल टाइप का एपिथेलियम होता है. Yes, a special type of epithelium called as transitional epithelium. Transitional epithelium. I will write down the. I will dictate you the spelling. Transitional. Transitional epithelium. लिखा सबने? Yes. यस तो अगेन देखो मैं सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ. मैं क्या बोली अभी आपको कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर एक बार में 500 ml to 1 liter ऑफ यूरिन स्टोर कर सकता है. तो इफ इट इज हैविंग द कैपेसिटी टू स्टोर दिस मच अमाउंट ऑफ यूरिन, दैट मीन्स द मसल शुड बी स्ट्रेचेबल. है ना, इसके पास कुछ स्ट्रेचेबल मसल होना चाहिए. तो ये जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारा, वो एक स्पेशल टाइप के स्मूथ मसल से बना है. स्पेशल टाइप ऑफ स्मूथ मसल से बना है जिसका नाम है detrusor मसल. और साथ में इसके पास एक स्पेशल टाइप का एपिथेलियम है कॉल्ड एज अ ट्रांजिशनल एपिथेलियम. ठीक है, तो ये जो detrusor मसल हो गया और ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम हो गया, ये दोनों मिलके उसको एक्सपांडेबल बनाते हैं या फिर स्ट्रेचेबल बनाते हैं. Yes, so that the urine can be stored, temporarily stored in the urinary bladder. Got it? The triangular part of the urinary bladder, ये जो triangular region दिख रहा है लास्ट का, this is called as a trigone. Trigone, Trigone, trigone. The triangular part at the base, inverted triangular area, inverted, it is looking like a inverted triangular area, na? So this part is called as a trigone. Trigone. लिखा ट्राइगोन के बारे में. तो Yes. मैंने आपको यूरिनरी ब्लैडर के बारे में 3 इंपॉर्टेंट चीज बताई जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकता है. एक तो मैंने आपको detrusor मसल के बारे में बताया, फिर मैंने आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में बताया, एंड लास्टली आई हैव टोल्ड यू अबाउट वन मोर टर्म, the last part of the urinary bladder which is looking like a inverted triangle called as a trigone. Correct? Yes? Yes, ma'am. तो काम क्या है यूरिनरी ब्लैडर का? टू टेम्पररी स्टोर द यूरिन. करेक्ट? चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज द यूरेथ्रा. यूरेथ्रा क्या है? इट इज द ओपनिंग. यूरेथ्रा क्या होता है? ओपनिंग है जिससे हम क्या करते हैं? यूरिनेशन करते हैं. ठीक है, सो यूरेथ्रा इज द ओपनिंग through which urination take place. Next point, the act of urination is called as mixed urination. The act of urination is called as mixed urination. Mixed urination का spelling is MICTURITION. You can see in your textbook page number 179 में do you know वाले कॉलम में मिक्स्ड यूरिनेशन के बारे में दिया गया है. Yes,
सो मिक्ड यूरिनेशन का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ यूरिनेशन और एक्सपेलिंग द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी. ठीक है, expelling the urine out of the body is called as a mixed urination. Correct. Next important point about the urethra is guarded by urethral sphincter. Urethral sphincter. Sphincter क्या करता है बेटा? कॉक का काम करता है. It helps in opening and closing. ठीक है, it helps in opening and closing. And this urethra sphincter, urethral जो sphincter है, it is voluntary control. Voluntary control का मतलब क्या होता है? जब हमें ओपन करना है ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर, तब हम ओपन कर सकते हैं. तो ये हमारे इच्छा अनुसार ओपन या क्लोज होता है ना. पर जब आप 2 साल के रहे होगे, जो भी एक 2 साल का बच्चा होता है, उसके अंदर ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ रहता है. इसके वजह से वो इनवॉलेंट्री होता है. और इसके लिए आप देखोगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, यस 2 इयर्स तक के बच्चे जो होते हैं, उनका यूरेथ्रल स्फिंक्टर इनवॉलेंट्री होने के वजह से वो लोग क्या करते हैं? बेड वेटिंग करते हैं. वेरी क्लियर. आफ्टर 2 years this urethral sphincter becomes voluntary. Yes, voluntary. तो उनको पता चलता है कि नाउ आई वांट टू गो फॉर यूरिनेशन, आई वांट टू गो फॉर पी. तो फिर वो लोग बताते हैं कि नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है. इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? सो till 2 years it is involuntary, और उसके बाद 2 years के बाद वो voluntary हो जाता है urethral sphincter. Okay. Next important point about the urethra is about the size. The size of urethra in male and female is different. मेल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यूरेथ्रा का साइज होता है 20 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल में इसका साइज होता है जस्ट 4 सेंटीमीटर. आप मुझे बोलोगे कि इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है मैडम? आई विल टेल यू द रीजन फॉर दैट कि व्हाई मेल में 20 सेंटीमीटर है और फीमेल में जस्ट 4 सेंटीमीटर है. सी 12th स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे बच्चों, तो आप लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हो. तो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ोगे कि मेल के पास, यस मेल के पास पेनिस एक ऑर्गन होता है. यस, ये जो पेनिस होता है ये डुअल काम करता है. डुअल मतलब 2 काम करता है. एक तो वो यूरिनेशन में भी मदद करता है, और दूसरा वो किसके लिए मदद करता है? फॉर इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म में भी मदद करता है. तो ये जो यूरेथ्रा है, इट इज पासिंग विद इन द पेनिस, मतलब पेनिस के अंदर से ये यूरेथ्रा पास होता है. वेरी क्लियर बेटा? तो ये जो हम जो 20 सेंटीमीटर बता रहे हैं, दैट इज द साइज ऑफ द urethra present within the penis of a male. Very clear? So in case of male, penis is called as the urinogenital duct. Urinogenital duct. क्यों उसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं? बिकॉज वो यूरिन पास भी करवाता है. और जेनाइटल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स इन द इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म आल्सो. समझ में आ गया सबको? ऑल ऑफ यू. बट इन केस ऑफ फीमेल में ऐसा नहीं होता है. फीमेल में वजाइना अलग ओपनिंग होता है और यूरेथ्रा जो है वो अलग ओपनिंग होता है. इसीलिए फीमेल के अंदर यूरेथ्रा का साइज जस्ट 4 सेंटीमीटर है. गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस. तो मैंने आपको यूरेथ्रा के बारे में क्या क्या बताया कि यूरेथ्रा इज द ओपनिंग थ्रू विच urination is been done. The act of urination is called as a mixed urination. ठीक है. Urethra is guarded by the urethral sphincter. This urethral sphincter is voluntary. ठीक है. Till 2 years it is involuntary. Afterwards it becomes voluntary. Next important point I've told you is about the size. In male it is 20 centimeter because it is a urinogenital duct in case of male, and in female it is just 4 centimeter because in female urethra is a different opening and vagina is a different opening. Got it all of you? Yes.
सबको इतना समझ में आ गया है? किसी को कुछ डाउट है क्या? यस, मैम हाँ बोलो बेटा। एक ही यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है या फिर दो होते हैं? होगा बेटा ना, एक ही यूरेथ्रल स्फिंक्टर। क्यों? मैम वो इधर ना वो पैराग्राफ जो कंप्लीट करने दिए है ना उधर ऐसे। अच्छा वैसा पूछ रहे हो? यस यस ओके। हाँ यस, स्फिंक्टर तो एक ही है बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू रीजन्स। स्फिंक्टर एक ही है, दैट इज कॉल्ड एज अ यूरेथ्रल स्फिंक्टर ओनली। पर Okay. ऊपर है नीचे का फर्क है। मींस जो ऊपर के साइड में है दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरनल, और जो बाहर के साइड में दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल, है ना? इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर वो एक ही है बट द ओपनिंग नेम इज डिफरेंट। ठीक है, जो बाहर के साइड ओपन होता है दैट इज एक्सटर्नल, जो अंदर के साइड ओपन होता है। अब अंदर के साइड का स्फिंक्टर का काम क्या है? कि यूरिन को रोक के रखना। जब तक आपका ब्लैडर फुल है तब तक ये यूरिन को रोक के रखा है ना यहाँ पे, तो ये अंदर वाले स्फिंक्टर का काम है। एक्सटर्नल वाले स्फिंक्टर का काम क्या है? कि जब आप ऑर्डर दोगे तभी ये ओपन करेगा और ये सारा यूरिन को बाहर ड्रेन करेगा। समझा अभी? यस। Any other point beta? Any other doubt anybody is having? Okay, अभी इन इसका बात आया है तो I will tell you about the kidney also. Kidney, as I've told you, it is also acting as a endocrine gland. So kidney जो है ना वो दो hormones बनाता है. If you want you can write down the names of the hormone. Kidney produces two hormone. First hormone का नाम है calcitriol एंड दूसरा हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपोइटिन। उसका स्पेलिंग अच्छा आई विल टेल यू। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है और इरिथ्रो का स्पेलिंग भी बता रही हूँ मैं। ERYTHRO POIETIN, इरिथ्रोपोइटिन। अच्छा तो आप इसको अगर आप ब्रेक करोगे ना तो आपको इसका मतलब पहले कभी स्पेलिंग बताओ ना। इरिथ्रोपोइटिन का नहीं उसके पहले ला कैल्सिट्रियोल, कैल्सिट्रियोल CALCITRIOL। थैंक यू मिस। एक और भी स्पेलिंग लिख लो, रेनिन, RENIN। ओके वेट, जस्ट वेट, आई विल शेयर द टेक्स्ट बुक ओनली सो दैट है ना आपका ये स्पेलिंग वाला कंफ्यूजन चला जाएगा। वेट जस्ट अ सेकंड बेटा, इट्स पेज नंबर इज 179। Okay. तो टेक्स्ट बुक में से मैं आपको टिक मार्क करवा दूंगी तो दैट विल बी मोर बेटर। सॉरी इट्स अ 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। वेट those who are not having the textbook उनके लिए बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, till I am ऑनिंग माय टेक्स्ट बुक, जस्ट वेट।
Yes. So you can see the textbook beta. See the spellings are been over here. You can see where I am pointing my cursor. See my annotation is off, maybe because उन्होंने off करके रखा है annotation. चलो ठीक है. So you can see the spelling erythropoietin. I can't mark it beta. From my side, you just see the spelling. I am moving the cursor over here. Erythropoietin, calcitriol and renin. अच्छा, इरिथ्रो को अगर आप ब्रेक करोगे ना तो व्हाट यू विल गेट, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड ब्लड सेल एंड पोएटिन का मतलब बायो में होता है फॉर्मेशन. ठीक है, तो इरिथ्रोपोएटिन का मतलब होता है आरबीसी प्रोडक्शन. मतलब किडनी हमारा, मैंने अभी आपको कल इतना एक्सप्लेन किया कि किडनी हमारा ऑस्मो रेगुलेशन करता है, किडनी हमारा नाइट्रोजन वेस्ट निकालता है, साथ में अभी आपने क्या पढ़ा कि किडनी आरबीसी बनाने में भी मदद करता है, मतलब हमारे रेड ब्लड सेल्स बनाने में भी मदद करता है. कैसे मदद करता है? बाय सिक्रेटिंग वन हार्मोन एंड द नेम ऑफ द हार्मोन इज इरिथ्रोपोएटिन. उसके साथ साथ किडनी एक और हार्मोन बनाता है जिसका नाम है कैल्सिट्रियोल. नाम से ही पता चल रहा है कैल्सिट्रियोल मींस इट इज हैविंग इफेक्ट ऑन द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. सो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद भी करता है. साथ में ये जो रेनिन हार्मोन आपको नजर आ रहा है, ये रेनिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्चुअली द जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus, जो आप बाद में पढ़ने वाले हो. ये रेनिन हार्मोन मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर. ठीक है, ओके. जिन बच्चों को मैंने ऑलरेडी न्यूट्रिशन लेसन पढ़ा दिया है, न्यूट्रिशन लेसन जो बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, आपने देखा होगा कि इसी से मिलता जुलता वर्ड मैंने न्यूट्रिशन लेसन में भी आपको बताया था. The spelling of that renin was RENNIN. सिर्फ एक n का फर्क है. RENNIN. अगर ये वाला रेनिन होगा तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो एंजाइम प्रेजेंट है जो कि डाइजेशन में मदद करता है. और ये वाला जो रेनिन है RENIN रेनिन, ये वाला जो रेनिन है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है. अगेन कैसे मदद करता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए? व्हेन वी विल बी लर्निंग अबाउट द नेफ्रॉन, दैट टाइम आई विल टीच यू कि रेनिन कैसे मदद करता है. ठीक है, तो किडनी क्या काम करता है? नाइट्रोजन वेस्ट निकालता है, टॉक्सिक निकालता है हमारे बॉडी से, होम्योस्टैसिस करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है, पीएच मेंटेन करता है, और साथ में ही कैल्शियम का बैलेंस करता है बाय कैल्सिट्रियोल, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है बाय रेनिन, आरबीसी प्रोडक्शन करवाता है बाय इरिथ्रोपोएटिन. वेरी क्लियर बेटा? यस. अभी जो मैंने आपको मेल का यूरिथ्रोजेनाइटल ग्लैंड बताया था उसका भी स्पेलिंग यहाँ पे दिया गया है. यू कैन सी द स्पेलिंग ओवर हियर आल्सो. ठीक है, ये जो भी डू यू नो का कॉलम दिया जाता है या फिर ये जो है इंटरनेट माय फ्रेंड, ये सब बेटा आप है ना थोड़ा सा पढ़ो और पढ़ के यू ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द सेम. ठीक है, इट विल हेल्प यू अ लॉट. आप जितना पढ़ोगे आपको थोड़ा सा और कुछ पढ़ने का मन करेगा गूगल पे. तो इसीलिए ये दिया गया है कि डू यू नो, ये सब जो बॉक्सेस दिए गए हैं ना, सो दैट इट विल क्रिएट अ इंटरेस्ट फॉर ऑल ऑफ. इसका आंसर्स हम टीचर्स ही बता देंगे तो आप कुछ फाइंड आउट ही नहीं करोगे. ठीक है, we have done the explanation, but from your side what you have to do, you have to take a reference book. आपको जितना आप खुद से पढ़ के करोगे आपको उतना और इंटरेस्ट आएगा. अभी देखो मैंने आपको सारा लेबलिंग्स दे दिया है, तो ये जो भी कॉलम्स है वो आप खुद से भरने का कोशिश करो. जो जितना होता है उतना भरो. नहीं आता है गूगल का मदद लो, उससे भी नहीं समझेगा तो मैं तो टीचर्स तो है ही ना बताने के लिए. ठीक है, तो आप लोग का आज होमवर्क क्या है? टू ड्रॉ द दिस डायग्राम. ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. कितने लाइंस में ड्रॉ करोगे? इन 14 लाइंस, नॉट मोर देन 14 लाइंस.